हाँ भाई क्या हाल है भैया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क जी स्वैग। सॉरी इस बार एक दिन लेट हूँ बिकॉज लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग। बहुत सारी वीडियोस पे काम चल रहा होता है एक साथ एंड ऑल्सो आई एम इन द मिडल ऑफ शिफ्टिंग। येस आई एम गोइंग टू अनवील माई न्यू ऑफिस वेरी वेरी सून। अभी थोड़ा काम चल रहा है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्रिप्शंस। अगर आपने नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ थैंक्स टू द पेट्रन्स ऑन पेट्रियन एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट यू कैन डू दैट ऑन patreon.com/kanji swag. I got a very nice feedback from this person. 2-3 एपिसोड्स पहले खातून ने मुझे ईमेल की थी. शी वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू फाइंड अ जॉब एंड शी हैड अदर प्रॉब्लम्स इज वेल. उसमें मैंने मेंशन किया था कि योर ईमेल राइटिंग इज़ रियली बैड लाइक बिकॉज द वे यू हैड स्ट्रक्चर्ड योर ईमेल इट्स वो अपीलिंग नहीं है. मे बी दैट कुड बी द रीजन यू नॉट गेटिंग जॉब्स अदर देन अदर फैक्टर्स. सो इस बार शी रोट मी अनदर ईमेल एंड it was so nicely composed, proper uska structure, proper body, proper signature and everything. She said कि because of that advice, she looked up how to write effective emails on YouTube. उन्होंने काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी, काफ़ी चीज़ें सीखी and now she is writing perfect emails. So that's one life change forever. So that's really important for you guys as well. बहुत सारी emails नज़रअंदाज इस वजह से हो जाती है बिकॉज वो पढ़ने में इतनी डिफिकल्ट होती हैं कि वो इंटरेस्ट लूज कर जाता है बंदा. सो प्लीज़ वर्क ऑन दैट. सो बिफोर ज़्यादा बात लंबी हो जाए, लेट्स गेट ऑन टू टुडेज ईमेल्स. द फर्स्ट वन कम्स फ्रॉम कोलकाता. हाय सर, आई हैव अ ग्रेट इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम इन मी. आई एम रियली गुड इन स्टडीज एंड ऑलवेज ट्राई टू डू गुड, बट माई मॉम फ्रॉम माई अपब्रिंगिंग ऑलवेज हैज़ क्रिटिसाइज मी सेइंग वो देखो उसका बच्चा कितना अच्छा है एंड लुक एट यू. आई रियली वॉन्ट टू ट्रैवल द होल country, which I did in Corona period, 8 cities in 1 year. Okay, that's a very risky time to travel, but good on you. But there's something that eats me up, feeling that I'm not good enough, not doing anything that could uplift me. I don't like my family due to my dad, as he does nothing. He had left his business on the verge of selling. I can't convince him that I'm going to study MBA and I have good degree and knowledge to take care of that business. And why should I manage other business when I have my own? But he's an old timer. He doesn't understand. However, on my end, I'm doing 3 internships, all work from home, even employed a person for this endeavor, only to see a smile on my mother's face and do something for her, but she never acknowledges me and tells how unlucky of a son am I. That's really sad. It's the worst thing you can do to your own child. I even gave up the idea to go to Canada and get settled there and help my brother study abroad and make him see what shithole of a country we used to live. But due to my mother's proposition, going to Canada means kudi fasayega, daru karega and whatnot. Told that she will not send me money and adamant on not sending me either. So what should I do? I have traveled a lot in Mumbai, Bangalore, not an iota of thought having these I didn't get this sentence, I'm sorry. But right now I've decided on doing MBA in Bangalore, but my heart is to go far from my family and see a new world awaiting to be seen. Sir, I love your podcast. Please discuss this. I'm on the verge of a breakdown. First of all, sorry, मैं नाम लेने लगा था. Don't feel sad. The toxicity in our desi parents is immeasurable. I think a lot of kids who are suffer at the hands of their own parents. मुझे ये समझ नहीं आता लोग, people go through so much to have a baby, right? कुछ planned होता है, कुछ unplanned होता है, I mean like जिस तरह होता है. Anyway, but हो गया. Like the entire pregnancy period is so, it's a lot of work. I saw my wife going through shit. Like, you know, there were days where she was like, she wanted to like, you know, कि यार बस हो गई, मुझसे नहीं संभाला जा रहा. एंड लाइक पीपल गो थ्रू सो मच. और फिर उसके बाद द बर्थिंग पीरियड इट सेल्फ इज़ सो पेनफुल. फिर उसके बाद लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड, एक एक चीज़ बच्चे का ख्याल रखना, उसकी सैनिटेशन का, उसके खाने पीने का, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी का. दे डू ऑल ऑफ दैट, दे गो थ्रू ऑल ऑफ दैट ताकि जब ये बड़े हों सो वी कैन फिल देयर लाइफ विद टॉक्सिसिटी और उनको डिप्रेस करके मार दें. आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्या सोच है, क्या थिंकिंग है. एक चीज़ आपने लिखी that you want to do so much to see a smile on my mother's face. मगर वो फिर भी मुझे acknowledge नहीं करती. She's not going to do that because this is who she is. And वो कहते हैं ना, आप चांद भी तोड़ के ला दो तो वो बोलेंगी डार्क साइड वाला ले आया, ये थोड़ा सा काला है, अच्छा वाला नहीं लेकर आया तू. So, and this is a very toxic motivation. When you, I get a lot of such emails where people want to prove something to their parents, to their spouse, to their children, to their friends, to their family, to their रिश्तेदार. This is a very toxic motivation कि उनको प्रूव करना. So when you think it that way,
you are giving them the power of your validation. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आप उनके हाथ में पावर दे रहे हो कि वो डिसाइड करेंगे कि whether or not you've made it or not. ठीक है? So that's a very toxic motivation. I used to do that as well. I had some people that I wanted to prove to, which is why I was doing what I was doing, and then I made it to a point. But then obviously वक्त के साथ साथ आप सीखते हो कि like that's not a nice way. Why should I even care what that person thinks? I don't give a shit about them. Right? Obviously you can't say that about your mother. I'm just saying generally लोगों के लिए जो हम रह रहे होते हैं ना कि यार वो क्या सोचेगा, so I have to work really hard so that they think something worthy of me. You're giving them power. पावर देनी नहीं किसी को भाई, वैलिडेशन अपने अंदर रखनी. सो वट एवर मोटिवेशन यू हैव, इट शुड बी इंटरनलाइज मोटिवेशन सो दैट यू वांट टू डू गुड बिकॉज you want to leave a legacy, you want to achieve something, you want to enjoy the luxury, you want to travel the world, right? That's a good motivation to have. कि I want to travel the world and do it on your own, rather than the fact कि जी अम्मी क्या सोचेंगी या बाबा क्या सोचेंगे, whatever. This is who they are. मैं देखो वो कहते हैं ना you can't really change a person. आप एक हद तक उनको एक वो दे सकते हो, डायरेक्शन दे सकते हो, but then it has to come from within. If I don't want to change, I don't want to change. I know cigarettes are bad and a lot of people tell me not to smoke, but I still smoke, right? I'm not proud of it, but I'm just saying you can't influence a change. हाँ, एक दो दिन के लिए थोड़ा होता है कि हाँ यार छोड़ देता हूँ, बच्चा हो गया, I want to live longer for him, but then 2-3 दिन के बाद फिर मैं उसमें चला जाता हूँ, because डिसीजन यहाँ से आएगा और यहाँ से मिल के आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता, राइट? सो यू कांट रियली चेंज. तो वो छोड़ दे के जी माँ के मुंह पे स्माइल देखनी. आई नो इट्स अ वेरी इट्स अ ड्रीम. हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि माँ बाप उससे प्राउड हो. मगर इफ़ दिस इज़ द सिचुएशन, और ये वाली बात कि बाहर जाएगा तो कुड़ी फंसाएगा, दारू पिएगा, ये काम इंडिया में भी हो सकता है भाई, कोलकाता में भी हो सकता है. मुझे ये बात समझ नहीं आती. यहाँ के भी लोग कहते हैं कि बाहर जाके बिगड़ जाएंगे. अबे यहाँ भी बिगड़ सकते हैं. और क्या यहाँ लोग बिगड़े हुए नहीं हैं? पाकिस्तान में लोग बिगड़े हुए नहीं है, इंडिया में लोग बिगड़े हुए नहीं है क्या? दारू नशा वशा नहीं करते, आइस नहीं करते, हाँ, दूसरे चक्करों में नहीं लगे रहते? बिल्कुल करते हैं. तो ये तो बहुत स्टूपिड लोग समझते हैं. पीपल अज्यूम कि आप जैसे ही जहाज आपका लैंड होता है ना कनाडा में, लंदन में, तो लड़कियां ये शर्ट खोल के खड़ी होती, आ गया मेरा वीर. वीर तो नहीं कह सकते, वीर तो भाई होता है. लाइक यू नो, आ गया मेरा बॉय, वट ऐसा नहीं है. वो भी इंसान है, वो भी एक सोसाइटी है, उनके भी कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ कस्टम्स हैं. असल में हमने वेस्ट को देखा ही पॉर्न में, तो हम समझते हैं यही है. ऐसा नहीं है भाई, वो उनकी भी कुछ कल्चरल वैल्यूज़ होती है, वो भी कपड़े पहनते हैं, नंगे नहीं घूम रहे होते. आज क्रिसमस का दिन है. आई फर्मली बिलीव रिमेंबर आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ अ क्रिश्चियन. तो वो उसके घर में ना एक मुस्लिम केबल वाला आया, वो केबल लगानी थी. तो उसने पूछा, उसने देखा, ज़ाहिर है ही लुक्ड अराउंड एंड ही सॉ द क्रॉस, ही सॉ द पिक्चर ऑफ जीसस वगैरह. सो ही सेड कि आप लोग क्रिश्चियन हो? तो उसने बोला हाँ. तो कह रहे हैं यार मैं तो सुना था आप लोग नंगे घूमते होगे घर में. लाइक व्हाट द फक मैन, व्हाई लाइक क्या ये व्हाई? बिकॉज उसने हमेशा फिल्मों में नंगापन देखा और उसने नंगी फिल्में देखी. सो ही अज्यूम्ड कि हुएवर इज नॉट अ मुस्लिम वो तो बेगैरत होता है. ऐसा नहीं है. ये बहुत स्टूपिड सी थॉट है. सो मैं आपको यही कहूँगा कि वट एवर मोटिवेशन you want to have in life, have it for your own self, because and like have a motivation. Look at your parents and just pray that you don't end up being like them. That is your motivation, right? So it should come from within, and don't give the power of validation to other people कि जी वो अच्छा सोचे तो फिर मुझे खुशी होगी. Fuck them. Screw these people, man. You don't need validation from them. You need validation from here, right? अपने आप को सही करना है. The next email. Assalamu alaikum. I'm from Kasur. I'm 20 years old. Like all Desi families, my family is also encouraged to get good grades. But as you can find a good job, or I don't want to do a job. अच्छा, नौकरी के लिए वो कह रहे हैं अच्छे grades हैं. I'm studying ACCA from Lahore. After getting enrolled, and I realized ACCA is not for me. My family is uneducated but focus on giving quality education to us. I have explained them I want to pursue my career in e-commerce and freelancing, but they don't understand. Regarding degree, I'm saying I will complete it on a slow pace, but will definitely complete it, as who knows when you get an opportunity to move to foreign country, but they don't trust me. I've seen many videos where parents are supporting their children, trusting on them, but mine are only advising to get a degree and find a job paying 1 lakh monthly. Okay. But I'm not a guy who want to become someone's slave for the whole life, but I want to achieve something. I have my goals which I have not achieved, and I want to at any cost.
I'm running my own online store, being stubborn and not listening what my parents are advising, and there are no one in our family who understands my point except my fiance. Now the problem number 2. I'm engaged to my Puppo's daughter. ये arranged love scene. अच्छा mix plate है. She trusts me and always encourages me to do what I think is right, but she got a big problem. That is, she wants to call me. She wants me to call her when she wakes up in the morning. क्यों भाई, तू अलार्म है क्या? क्यों? अलार्म हो क्या? मुर्गा हो क्या? आसान दोगे उसकी कान में फोन करेंगे? कुकड़ू कू करोगे क्या? अच्छा. She wakes up in the morning, we talk for 3 hours. Dude, you fucked up your day. Like, for 3 hours, that's the most productive time of the day. When you wake up, you're charged, you're motivated, you're like, आज आपके भाई ने गेम करनी है और आप 3 घंटे, and you're 20. So like, I'm assuming she's 19 or maybe she's 20 as well. What are you guys talking about for 3 hours except gossiping and bitching about other people? I mean, I'm not saying this is all what 20 years old do, but I just want to know. Anyway, clearly she doesn't have any hobby. So like, what do you guys talk about? Clearly, if you're अच्छा, आगे बाद में बात है. Okay, in the morning 3 hours and then at night 9 से 12. मतलब तू सिनेमा है क्या? तेरे शो लगते हैं क्या? सुबह 3 घंटे, रात को 3 घंटे चलती है क्या 9 से 12? She says do what you want. अबे तो 6 घंटे तो इधर ही हो गए. अब want क्या करेगा वो? What else does he want? We talk for approximately 7 hours a day. Dude, that's like a fucking job. Is she paying you 1 lakh that your parents want you to make? Is she paying you 1 lakh for this? If she's paying, then do that. Please, go ahead. 7 घंटे, it's a working shift that you're giving to that lady. I don't know, man. And you can understand that's a lot of time. Of course it is. 7 hours talking with her, 7 hours sleep. 24 में से gone. I have explained her a lot of time that I can't waste my time like this as I have to achieve big things in life, and for that I have to invest my time, but she refused to agree. As I love her and can't leave her and want her to be my life partner, but on the other hand I don't want to waste my time like this. Sir, kindly advise me, what should I do? I'm moving towards depression and sometimes things to run away where I can find peace of mind and where I can work to achieve my goals. Clearly, beta, you are someone who has bigger dreams. Who is not like, dude, like, अभी आपने बोला ना कि आपके पेरेंट्स चाह रहे हैं कि आपकी 1 लाख रुपए सैलरी हो. I'm sure you're making more than that right now, considering you're in e-commerce. There are millions of people in Pakistan who would love to have that 1 lakh रुपए, और आप उसको भी छोड़ना चाह रहे हो. So clearly you're far more motivated than millions of people in Pakistan right now, right? So you are, and at the age of 20 वाले आजकल क्या कर रहे होते हैं आपको अच्छी तरह पता है. इंस्टाग्राम पे देख लो, स्नैपचैट पे देख लो, एक हाथ में गाड़ी, एक हाथ में यूं शीशा आ रहा है. ये हो रहा है स्नैपचैट पे, ठीक है ना? नॉट जनरलाइजिंग, बट दिस इज मोस्टली यंगस्टर्स आर डूइंग. वो एक अलग डिबेट है, बिकॉज देर आर नो एवेन्यूज, देर इज नो एंटरटेनमेंट. तो जब कुछ नहीं होगा तो फिर वो यही करेंगे, बिकॉज यूथ इज चार्ज. लाइक बच्चे चार्ज अब होते हैं, उनको कुछ करना होता है, उनमें बहुत एनर्जी होती है, उसको कहीं लगाना होता है. यहाँ कहाँ लगाएंगे? तो बस लगा रहे होते हैं बस फिर वो. So anyway, so you're clearly very motivated and you have a goal and you have a clarity. हमारे 30 साल के लोगों को, 35 साल के लोगों को क्लैरिटी नहीं होती लाइफ में कि करना क्या है. They're just following a script. स्कूल गए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, डिग्री ली, माँ बाप ने शादी करा दी, शादी कर ली, बच्चे हो गए. They're just following a script. They don't know what to do, which is why they get midlife crisis and they end up having a lot of depression at the age of 37, 38, right about my age. लोगों को फिर ये होता है कि यार मेरा मकसद क्या है. Existential crisis creeps in कि यार मैं दुनिया में क्या यही करने आता है कि सुबह किसी और की मर्जी से उठूँ, शारा फैसल पे ख्वारूँ, ट्रैफिक में, फिर मैं काम पे जाऊँ, बॉस की गालियाँ सुनूँ, घर आऊँ, बीवी की गालियाँ सुनूँ. Is that what life is? And that's where depression creeps in. So at least आप तो 18 साल, you're way ahead of them, right? You already have a clarity. This is fucking toxic. 7 घंटे रोजाना बात करना. What is the content of those conversations? I'm really interested to know, right? 7 घंटे, man, that's a lot. अब लोग पता है सबसे बुरी चीज़ क्या करते हैं? People who are in relationships, people who are engaged, or people who are in long distance marriages, right? They spend so many hours talking पहले, फिर शादी के बाद बात करने को कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि सारी बातें तो शादी से पहले कर ली. ओ भाई, कुछ आगे के लिए भी रखो. सो लाइक ठीक है, इफ शी लाइक्स टू वेक अप टू योर वॉइस, दैट्स परफेक्टली फाइन. गिव हर अ कॉल 5 मिनट की. ओके, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस वंडरफुल डे ऑफ फन.
Clearly she doesn't have a hobby, she doesn't have a job, which is why she is investing so much time with you, and that's her toxic trait, right? एक बात बोलो, उनको बोलो कि जी मैं कुछ अरसे के लिए दुबई जा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई ई कॉमर्स बिजनेस, एंड वहाँ पे व्हाट्सएप कॉल्स नहीं चलती, सो आई वॉन्ट बी एबल टू कॉल यू एज मच, बट ये कि मैं 1-2 दिन में 5 मिनट की कॉल कर लिया करूँगा एतिसलात की लाइन से. Look at her lose her shit. She will lose her shit, right? Why? Because she values her gossiping or talking or whatever more than your success. So if you say कि यार दुबई में जा रहा हूँ, e-commerce का एक बहुत बड़ा एग्जिबिशन है या कॉन्फ्रेंस है, and that is going to make me excel in my e-commerce business, and I would be able to expand it to UAE and Saudi and Qatar, और फिर मैं उस मार्केट्स को देख रहा हूँ, $1 million आने वाला है, ये है वो है. शी वुड इग्नोर ऑल ऑफ दैट एंड से कि बट हमारी बात कब होगी, यानी उसकी बातचीत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन योर सक्सेस. सो क्लियरली शी इज़ नॉट अलाइंड विद योर गोल्स, एंड इफ योर ओन स्पाउस इज नॉट अलाइंड विद योर ओन गोल्स, देन यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट पर्सन. यू नीड टू फाइंड समवन हु इज as passionate as you are, and even if she's not passionate, at least she's as supportive for what you want to do. Otherwise you will live a life of misery and like loneliness. मैंने हमेशा बोला है, loneliness is not when you're alone. Loneliness is when you're with someone and you think you don't belong there. You get what I'm saying? साथ में सो तो रही होगी but like कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ मैच ही नहीं करता, so you're trapped. And that's a very bad feeling. अभी मंगनी हुई है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, मंगनी होती है, लोग नहीं समझ आते, people move on. It will hurt. You're 20 तो ज़्यादा होगा थोड़ा ना, आशिकी वाशिकी वाली एज होती है ना, ये आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, ये सब चलेगा, मगर like few weeks down the line you'll be fine. But once you're married with that person who's not aligned with your goals, and then you have a kid with her, and now you can't do anything, you're trapped in this marriage, और औलाद जो है ना वो बेड़ियाँ बन जाती हैं, एंड दैट्स अ वेरी सैड फीलिंग टू हैव कि आप यूर ओनली टुगेदर बिकॉज ऑफ द किड्स. बच्चे ना इंसान का वो होते हैं लाइक एक मोटिवेशन होते हैं, पॉजिटिविटी रहनी चाहिए ना, औलाद इंसान की एक वो हो कि यार लाइक आई एम डूइंग समथिंग वैल्यूएबल एंड आई वांट टू लीव समथिंग वैल्यूएबल फॉर देम, not just in monetary basis but also like my own values, my own teachings वगैरह वगैरह. मगर आप उस औलाद को देखो और देखो कि यार ये मेरे पैर की जंजीर है which is stopping me, you're gonna end up hating your own child, and that's a very bad feeling for your own child, man. So ये 7 घंटे भाई it's extremely toxic. 1 घंटा भी बहुत ज़्यादा है, 1 घंटा भी बहुत ज़्यादा है, like आधा घंटा 15 मिनट, I can't quantify कि कितनी बात होनी चाहिए, but like dude this is like a proper working shift. यही 7 घंटे तुम अमेजोन पे लगा रहे हो ना, अगर या इधर उधर लगा लो, अपने काम पे लगा लो, वट एवर यूर डूइंग, ई कॉमर्स ना, सो यू कैन एक्सेल रियली अलॉट इन लाइफ. शी क्लियरली डजंट हैव अ जॉब, नो हॉबीज़, नो फ्रेंड्स, और ऐसे लोग जो होते हैं ना वो फिर दिमाग खाते हैं. सो लाइक ऑफ सीन है भाई. जी, दिस वन इज टाइटल्ड मास्टरबेशन प्रॉब्लम. हेलो सर, हाउ डू यू डू? I've been following you from the last 1 year and I'm very inspired from your thoughts. मेरा नाम डररा, I'm from राजस्थान, इंडिया. सर मैं पिछले 15 सालों से मास्टरबेशन की प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ. आज मेरी उम्र 30 साल है और ये आदत मुझे डरा रही है कि फ्यूचर में सेक्स लाइफ भी अफेक्ट हो सकती है. सर जब मैं 13 से 14 साल का था तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि चल, पता नहीं क्या लिखा है, मुझे तो पढ़ने कुछ समझ नहीं आया वो क्या बोल रहे हैं. मुझे लगा कि कोई नया गेम होगा. फिर वो सब लोग मुझे एक अंडर कंस्ट्रक्शन मंदिर में ले गए और सभी ने अपने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए. अल्लाह भगवान के पास जाके ये हरकतें, तौबा तौबा. सब ने कपड़े उतारने शुरू किए और फिर आगे तो आप जानते ही हो. नहीं, मैं नहीं जानता आगे क्या हुआ है भाई. तो यू नीड टू गिव मी क्लैरिटी. लाइक इट सेज मास्टरबेशन, सो डिड यू ऑल फैप्ट और लाइक अदली बदली की? आई डोंट नो मैन. वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था. किस चीज़ का? आई एम नॉट क्लियर. भाई क्यों हंस रहा है यार, किसी की प्रॉब्लम है. फिर वो सब लोग मुझे एक अच्छा, लेकिन तब से मुझे उसकी आदत लगी. और ओके, सो यू क्लियरली जर्क्ड ऑफ देयर और चला गया और मुझे ख़ुद भी पता नहीं चला. फिर मैं रोज़ मैस्टरबेट कर रहा था. उस समय इंटरनेट या स्मार्टफोन नहीं थे तो मैं डीवीडी पर पोर्न देखता था और फिर उसकी भी लत लग गई. और जब मैं ये पोर्न टीवी पे देखा था और मैस्टरबेशन की आदत थी तो पहले से,
तो जो ब्लू फिल्म्स में होता है मैं भी वैसा करने की कोशिश करता था, मैं उस चीज़ का ग़ुलाम बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे मैं मैच्योर होता रहा, चीज़ें समझ आने लगी, तो मैंने उस पर कुछ पाबंदी लगाने की नाकाम कोशिश की। लेकिन कोशिश की तो रिज़ल्ट कुछ ऐसा आया कि पहले मैं रोज़ करता था, तो अब महीने में एक बार करता हूँ। दैट्स गुड सक्सेस मैन। आई मीन मुझे भी, आई होप आई गेट दिस काइंड ऑफ कंट्रोल इन माई लाइफ। लेकिन कभी कभी 2 बार भी हो जाता था, चलो ठीक है 2 बार महीने का खैर है। लेकिन अब मुझे उसे भी ख़त्म करना है। ओके, तो मैं यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखता था कि मास्टरबेशन से कैसे छुटकारा पाया जाए, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग कंटेंट नहीं मिला। मैंने रोज़ एक्सरसाइज करना शुरू की, मोटिवेशनल वीडियो देखना, खुद को बिजी रखना शुरू किया, कम से कम अकेले रहना। गूगल में वो लॉक सिस्टम आता है जिसपे पोर्न साइट्स ब्लॉक हो जाती हैं, वो भी किया। खुद को समझाया कि पोर्न इंडस्ट्री एक नकली चीज़ है, उसकी भी प्रॉपर शूटिंग होती है, लेकिन वही पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। और अभी तो स्मार्टफोन और चीप इंटरनेट की वजह से पोर्न देखा काफ़ी आसान हो जाता है। और फिर ट्रू, you're absolutely right. साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम, मैं हर लड़की को उसी ब्लू फिल्म वाली लड़की की नज़र से देखता हूँ, चाहे फिर वो कोई भी हो। और फिर जो भी लड़की जिसमें देख रहा हूँ वो समझ जाती है कि ये काफ़ी बुरी नज़र से मुझे देख रहा है। बाकी आप समझ जाएंगे। दिस इज़ द कॉज ऑफ इंक्रीजिंग रेप केसेस इन इंडिया एंड इन पाकिस्तान एज वेल। लोगों से कम मिलना जुलना, शादी और पार्टी में नहीं जाना, घर पर भी कोई मिलने आए तो अपने आप को कमरे में लॉक करना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, किसी काम में मन नहीं लग रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद इसी कारण मैं 30 साल का हूँ फिर भी अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट हूँ। और घर के लोग भी चिल्लाते हैं कि 30 साल का हो गया है, कुछ काम धंधा शुरू कर, उस चीज़ का अलग मेंटल प्रेशर है। थैंक्स टू सर फॉर योर प्रेशियस टाइम, प्लीज़ गाइड मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट। देखिए गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड, पोर्न इज़ अ वेपन, इट्स नॉट एंटरटेनमेंट। पहले मैं भी सोचता था एंटरटेनमेंट है यार, इट्स जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, मगर नहीं, इट्स अ वेपन। इट्स अ वेपन टू डीह्यूमनाइज पीपल एंड मोस्टली women of course, and the way women are being dealt with in porn, it only makes mind mapping आपकी होती है कि यार औरत को ऐसे ही ट्रीट करना है, राइट? एंड इट हैज़ वेरी it raises the bar of unreal expectations, राइट? आप देख रहे हो 40 मिनट का सीन जो कि बीच में इतनी बार कट हुआ है, कैसे हुआ आपको पता ही नहीं चला कट कैसे हुआ है। ये वीडियो इतनी बार बीच में कट हो रही होगी, आपको पता ही नहीं चल रहा होगा, क्योंकि एक नंबर 1 एडिटर है हमारे पास, राइट? तो आप उसको एक पैरामीटर बना लेते हो कि यार फिल्मों में तो इतना देखा है, यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा, राइट? सो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ कि लाइक यू स्टॉप रिस्पेक्टिंग विमेन अराउंड यू, जैसा कि आपने भी लिखा, और फिर आप ज़ाहिर सबको उसी नज़र से देखते हो। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है, लैक ऑफ परफॉर्मेंस, फिर वो आपके एंग्जाइटी आपके अंदर ऐड हो जाती है कि यार वो इतना कर रहा था, क्योंकि माइंड है ना, इसकी मैपिंग और रीवायरिंग होती है, ठीक है। जब आप रोज़ाना एक ही चीज़ इसको दिखाओगे तो वो, देखो एक चीज़ होती है सर्वो मैकेनिज़्म। सर्वो मैकेनिज़्म क्या होता है कि जैसे वो जहाज़ वाले F-16 वाले या JF-17 थंडर वाले, हम तो अपने वालों के नाम लेंगे ना, मिग को मारते हैं, मिसाइल मारते हैं, तो वो पीछे पीछे जाता है, राइट? जैसे जैसे जहाज़ मूव हो रहा होता है, क्योंकि उसमें सर्वो मैकेनिज्म होता है, वो उसी को ढूंढ रहा होता है। सिमिलरली व्हेन यू ट्रेन योर ब्रेन लाइक दैट, व्हेन यू कीप वॉचिंग पोर्न, तो वो जो है ना, उसकी वायरिंग चेंज होती रहती है, वो फिर उसी तरह जाता है। तो देन व्हेन यू लुक एट विमेन आउटसाइड द स्क्रीन, यू लुक एट द सेम वे, राइट? स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप, राइट? मगर उसको भी इतना गंदा कर दिया पोर्न ने कि यू कांट से द वर्ड स्टेप मदर एंड नॉट थिंक ऑफ सम मिल्फ। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? Same goes for stepsister. Like if your father married someone who was previously married and has kids, so now their daughter is your stepsister. बहुत बहुत प्यार का रिश्ता और बहुत इज्जत वाला रिश्ता है. But because of porn, that beautiful relationship has turned into something very, very disgusting. Right? That's what porn does. So it's a weapon. It's a weapon against you. तो आप जब भी आपका दिल करे ना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेरोटोनिन लेवल, डोपामीन जो आपका ये बढ़ाता है, it's more addictive than cocaine. So scientists have done studies on the effects of different drugs और उसका वो ब्रेन लेवल को जो डोपामीन लेवल, सेरोटोनिन लेवल कहाँ जाके हिट करता है. पोर्न हैड द हाईएस्ट, राइट? सो जब आपको नशा है ना, ये भी
जब वो नशे में क्या होता है, आपने शराब पी 1 गिलास, राइट, आपका बार 1 पे सेट हो गया, अगले दिन फिर 1 से नहीं होगा, वो उससे ज़्यादा ही होगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, राइट. Which is why when you start watching porn, you start watching regular sex, then you venture into lesbian porn, then you venture into BDSM, फिर वो आगे आगे जाके वो weird से weird होता चला जाता है. So much so that you end up, वो जैसे YouTube पे होता है ना, आपने मेरी वीडियो खोली, साइड में कुणाल कामरा की वीडियो है, आपने उसको क्लिक किया, कुणाल की आई तो फिर वो ध्रुव राठी की आ गई, उसको क्लिक किया, वो करते 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 फिर वो एकदम 2-3 घंटे बाद आप अजीब सी वीडियो पे पहुंचे. आई एम लाइक, मैं यहाँ पहुंचा कैसे, राइट, बिकॉज यू कीप. सो सेम गोज फॉर पॉर्न. यू स्टार्ट विद अ रेगुलर थिंग, बिकॉज रेगुलर ही नहीं मिलता ना हमें तो सही एज पे, तो वो रेगुलर से होते होते तो फिर आपकी हाइटेंड इमोशंस वहाँ तक जाते रहते ना. देन आफ्टर अ व्हाइल यू आर लाइक, व्हाट एम आई डूइंग ऑन दिस पेज वेयर देर आर midget she-males trying to fuck a donkey. You get what I'm saying? You're like, how did I end up there? क्योंकि वो रेगुलरली आपका ख़त्म हो गया. एंड द मोर लाइक, एक तो ये डोपामीन वाला ये जो है, तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हो, बिकॉज ब्रेन को जब आदत हो गई है ना, सर्वो मैकेनिज्म, जब वायरिंग उसकी ये हो गई कि जी इतना डोपामीन मिलेगा तो मज़ा आएगा, तो नींद आएगी. बहुत से लोग देखे बगैर नहीं सो सकते, राइट, बिकॉज इट बिकम्स देयर स्लीपिंग पिल. वो ज़ैनेक्स है लोगों की कि जब मैं जर्क ऑफ करूँगा तभी नींद आएगी, वरना नहीं आएगी. एंड इट्स ट्रू इन अ लॉट ऑफ केसेस. सो और जो सबसे इसका जो वर्स्ट इफेक्ट है ना, वो ये है कि यू गेट सो डिपेंडेंट ऑन द स्क्रीन that you lose interest in your own partner, and that's the worst thing to have happened. I know a lot of people who are not interested in sex with a real person, but they are heavily invested in porn. इसकी एक मूवी भी थी ना, क्या नाम है उसका, बैटमैन में जो रॉबिन है, 500 Days of Summer वाला, मुझे हमेशा, मैं आपको बताया ना, नाम ही नहीं याद रहते. उसकी बहुत अच्छी फिल्म है, उसमें वो पोर्न एडिक्ट होता है, पोस्टर लगा आ जाएगा अभी साइट पे, तो वो फिल्म देखें, उसमें उसकी हालत देखें, वो क्या हो गया था आदमी, राइट. एंड दैट्स व्हाट पोर्न डज. सो व्हाट यू नीड टू रियलाइज, देखो, यूर 30 एंड यूर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स, सो दैट्स द वर्स्ट थिंग यूर डूइंग. खाली दिमाग शैतान की दुकान होता है, तो जब कुछ करने को नहीं होगा तो फिर दिमाग इधर ही जाएगा, बिकॉज इट्स वायर्ड दिस वे. आपको अपने आप को मसरूफ रखना है. गेट अ हॉबी, स्टार्ट वर्किंग आउट, जिम जाओ, रनिंग करो, इतना थक जाओ कि घर आके सो जाओ, कि कुछ करने की हिम्मत ही ना हो, राइट. ऑक्यूपाई योरसेल्फ, हैव फ्रेंड्स, गो आउट, मीट देम, हैव कनेक्शन विद द रियल वर्ल्ड. ये स्क्रीन वाली वर्ल्ड से ना, ये बड़ी डेंजरस है. सो वो जो मैंने लास्ट वाला पार्ट बोला ना कि यू लूज इंटरेस्ट इन योर ओन पार्टनर, यू लूज इंटरेस्ट इन पीपल, क्योंकि आपकी वायरिंग ही वो वाली हो गई ना कि यार वैसा होगा तो वो असली है, ये वाला क्या है, तो मज़ा ही नहीं आ रहा. एंड दैट्स really really bad. So whoever is watching, and it's not the first time I got this question, I got this question a lot of times. मैंने आज सोचा आज इसको एड्रेस कर ही लिया जाए. So when you start thinking of it कि ये एक वेपन है, अगर आपका दिल करे देखने को, start thinking like it's a weapon against me. And as I always say कि you need to take care of yourself as if you are responsible for the well-being of this person. राइट. अगर मैं आपको बोलूँ ये एक यतीम बच्चा है, आपने इसकी कफ़ालत करनी है, आपने इसको पढ़ाना लिखाना, इसका ख्याल रखना है, इसको प्रोटेक्ट करना है, सेफ्टी सिक्योरिटी देनी है, तो आप करोगे ना. सो यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ एज दैट पर्सन कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलबींग ऑफ दिस पर्सन. सो जब आप इस तरह सोचना शुरू करोगे ना, बार बार मैनिफेस्टेशन करोगे इस थॉट की, तो रिवायरिंग ऐसी हो जाएगी, यार मुझे अपना ख्याल रखना है. सो यू स्टार्ट टू स्लीप प्रॉपरली, यू स्टार्ट टू ईट हेल्दी, यू स्टार्ट टू वर्क आउट, यू स्टार्ट टू रन, जॉग, वट एवर, राइट. तो वेन एवर यू फील लाइक, अगेन इट्स अ नेचुरल थिंग, यू गेट अर्जेस, राइट. इट्स लाइक जैसे जिस्म की भूख, जैसे पेट की भूख है, वैसे जिस्म की भी भूख है. सो वेन एवर यू फील लाइक वॉचिंग पोर्न, थिंक ऑफ इट दिस वे कि दिस इज़ अ वेपन बीइंग यूज्ड अगेंस्ट मी, और आपने अपने आप को इससे बचाना है, इस वेपन से. सो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग दैट वे, आई होप यू विल सी डिफरेंट रिजल्ट्स. सो गुड लक मैन, एंड ख्याल रखो अपना. नेक्स्ट वन, अस्सलाम वालेकुम जुनैद सर, माय नेम इज़ डराडा, आई एम 18 year old ACCA स्टूडेंट लिविंग इन कराची. अच्छा, हर कोई ACCA है, हमारे यहाँ ट्रेंड्स होते हैं. लेट 90s MBA, सब MBA कर रहे थे. फिर IT सेक्टर आया, सब IT कर रहे थे, राइट. फिर मीडिया साइंसेज आया, हर बच्चे के गले में कैमरा, इंक्लूडिंग दिस, ठीक है. अब सब ACCA कर रहे हैं,
ट्रेंड्स हैं. Anyway, I'm sick of living in such a society where the way you look matters above almost everything, especially in schools, colleges, and universities. If someone doesn't look the way society wants them to be, they get bullied continuously, which leads to depression eventually. I personally was very insecure of my nose and felt ashamed of it, and it affected me in ways like avoiding social gatherings and talking to girls. And I used to think that girls don't find me attractive because I'm not beautiful. Handsome is the word. I blame the drama and film industry of Pakistan and India because they always cast the model looking men and women basically having same features on their faces in leading roles, and it has made everyone else ugly. And the absurd fact is the majority of the people are unbothered by sick mentality is what's driving me crazy. No one wants to talk about it because people have been brainwashed from the childhood, and beautiful people are never going to talk about it obviously, and ugly people are too insecure to do so. Please, I'd like to see what you have to say. और नीचे इन्होंने कुछ मीम्स भेजे हैं कि जिसमें लाइक देयर इज़ अ कंपैरिजन ऑफ ब्यूटीफुल पीपल एंड अगली पीपल. आई डोंट कॉल देम अगली, इट्स जस्ट देर जस्ट नॉट रिच. वो कहते हैं ना कि यूर नॉट अगली, यूर जस्ट नॉट रिच. यार पिछले दिनों वो तस्वीर आई थी काइली जेनर की. काइली की थी, कैंडल की थी, किसकी थी? बगैर मेकअप के, ड्यूरिंग कोविड. शी वॉज अ रेगुलर Mexican looking lady. So it's just a beauty standard that society has set. And first of all, आप 18 साल के हो, you don't need validation from girls, you don't need that. And I can tell you from my own experience, I'm not a good looking guy, but what's always worked for me in terms of charming the opposite gender is the confidence. So you need to have confidence. Women love confidence. You must have seen a lot of couples wherein the woman is extremely beautiful and the guy, if he's not rich, is like average looking guy, and you sometimes assume ki like what's happening here, right? That's confidence, man. Women love that. And you have to be, sadly, if you're not following the beauty standards of जो कि एक preconceived notion है, then you need to work on your personality. Beautiful people have their lives very like उनकी ज़िंदगी बड़ी आसान होती हैं. They're like more likely to get selected for jobs. They're more likely to get things done for them. Like for example, मैं एक बात बोलूँ, और आपने जो हॉलीवुड वगैरह की इसकी एग्जांपल दी, इसकी भी मैं आपको वजह समझाता हूँ. बिकॉज मैं एक बात बोलूँ और फवाद खान भी वही बात बोले, यू आर मोर लाइकली टू ट्रस्ट व्हाट फवाद खान सेड. व्हाई? बिकॉज देखो यार, ब्यूटी इज़ एन एसेट, मानो या ना मानो. ब्यूटी इज़ it's a commodity. It sells. Mano ya na mano. I mean, like, I know we're living in the woke PC culture. ठीक है, political correctness की ये हम दुनिया में रहते हैं, but at the same time, dude, like, it adds value. आप माने या ना माने, try doing that. There's a reason why. कभी आपने सोचा how come all the musicians are so good looking? How? All of them except Jay-Z. I'm just joking. लेकिन ये कि why? Because A, they're rich, so like they can afford, उनके ऊपर बड़ा काम हुआ होता है, right? दूसरी चीज़ ये ट्रस्ट फैक्टर जो है ना, भाई टॉम क्रूज एक बात बोलेगा ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, दिल को लगेगी, राइट? एज अपोज टू वो रज़ाक खान है ना, वो क्या फैयाज टक्कर, यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? सो देयर इज़ अ रीज़न. मैं हमेशा ये चीज़ ज़रूर सोचता था, आपने कभी देखा है ना फिल्मों में, व्हेन अ गाय हु गेट्स ड्रंक, राइट, एंड ही वेक्स अप द नेक्स्ट मॉर्निंग और वो बेड पे देखता है एक नॉट सो गुड लुकिंग औरत वहाँ होती है, एंड देन ही इज़ लाइक हाउ द फक डिड यू एंड अप हियर, राइट? सो उसमें ये क्रिएट किया जा रहा था कि बिकॉज ही वॉज ड्रंक ही पिक्ड अप अ नॉट सो गुड लुकिंग वुमन एंड ही एंडेड अप हैविंग सेक्स विद हर, और फिर सुबह उसको रिग्रेट हो रहा है, राइट? उस लड़की को कास्टिंग कैसे की गई होगी कि ओके सो यू आर एन अगली फैट बिच, राइट? So you have to play this role of a really unattractive girl wherein a guy feels disgusted of being with you. मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि उस इंसान को क्या कह के ये रोल दिया गया होगा, एंड हाउ वुड दैट, वो उससे कैसा फील किया होगा उसके बाद कि ये मेरा रोल था, दैट आई वॉज एन अनअट्रैक्टिव फैट वुमन,
जिसको देख के बंदा करके भाग गया. ऐसा आपने देखा होगा ना, राइट? इंडियन फिल्मों में भी ऐसा होता है. इट्स रियली सैड. बट ब्यूटी इज अ कमोडिटी. बट ये कि ब्यूटी डजंट लास्ट फॉर एवर, एंड दैट्स. सीरी को क्या हो गया? ब्यूटी बोला, सीरी जाग गया. अच्छा भाई चुप कर. तो here's the thing. It's always going to be your skills and your confidence and your knowledge which is going to last forever, right? There is a very very good looking musician who got a lot of fame because of her looks, and I had once mentioned in my video like you guys are all following her for her looks. She's a singer. You should judge her ability on the basis of how she sings. And that very person inboxed me and saying, I didn't like what you say. People follow me for my music and you are wrong. And I'm like, no, I'm not. People are literally going gaga over how you look. But good for you. I wish you well. 2 साल बाद उन्हीं का एक आर्टिकल आया एक अखबार में कि आई फील रियली बैड दैट पीपल ओनली फॉलो मी फॉर माई लुक्स एंड नॉट फॉर माई म्यूजिक. जब मैंने कहा तो बुरा लगा. एनीवे, नाम नहीं लूँगा. अब नीचे लोग गेस कर रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ. आई डोंट केयर. सो या, और आई टेल यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप 18 साल के हो, इन चीज़ों पे फोकस ना दो. नाक ऐसी ऐसी वो ऐसी है. बेटा जब नीचे होगी ना मर्सिडीज़, तो यही नाक जो है ना सबसे ब्यूटीफुल फीचर होगा आपका. सो इनहेरेंट वैल्यू जो होती है ना एक मर्द की, इनहेरेंट वैल्यू, inherently they're not valued. They're valued on the basis of what they can provide, right? So you need to work on that. So you need to be someone who's successful in life. You need to be someone who's compassionate, more caring, someone who exudes confidence, someone who exudes command. And when I say these things, I don't mean someone who's toxic, someone who's, as I said, compassionate. अच्छे दिल के इंसान बने तो मिल जाएगा आपको. अभी आप 18 के, so naturally you're looking around people who are also your age, and girls of that age obviously they're enamored by, you know, the typical वो एक typical एक वो होता है ना वन डायरेक्शन वाले, क्या नाम है उसका. So उनकी वो idealism वो होता है उस एज में. So like once they grow older they realize कि यार looks, because by then they have dated a few good looking men who were just assholes, not generalizing. So then they realize, okay, it's not just the looks, a person has to be good from the inside as well. And that's how they end up making good decisions later on. Not everyone, but some do, right? So you need to be that guy. Abhi 18 ke ho, ye aapki wo hai hi nahi. This is not your priority in life, and don't think about it. Walli walli. Salam Junaid bhai, keep me anonymous. I really need a concrete solution to my problems which I'm facing after my marriage. I got married with my cousin in January this year. She's 25 and I'm 28. My problem is that my wife is more inclined towards her family than me or her in-laws, even though I always try to keep her happy and also provide her whatever she asks for. But most of the time she favors her parents and also give them her personal accessories like new clothes, jewelry, makeup. That makes me uncomfortable because I provide these things for her with my hard-earned money. I want those things to stay in my house even if she doesn't use them. Please suggest me a solution. How can I change her mind? Because I have tried many times to ask her not to give her things or favors to her family even when they are wrong, but every time I fail to change her mind. Need your opinion solution. First of all, that's a very... Yeah, life is all about balance. It's all about मीज़ान. इस्लाम भी हमें ये सिखाता है. लाइफ भी चलती तब है जब आप प्रॉपर बैलेंस करें. A lot of people don't realize, like जब शादी हो जाती है, so like that's your family now. मैं ये भी नहीं कह रहा कि पीछे वाली छोड़ दो, but then that's where you need to, like as a guy, आपको भी बैलेंस करना है अपनी माँ और अपने बच्चे की माँ के बीच में, और लड़की को भी करना है अपने घर वालों के बीच में और अपने ससुराल में. ये 2 घर इन्वॉल्व है ना. और सारी प्रॉब्लम की जड़ ही यही होती है कि व्हेन पीपल लूज दैट बैलेंस, दे डोंट नो हाउ मच टू डू और गिव वेयर. एंड दिस इज नॉट अ नाइस थिंग. यू सेड शी इज योर कज़न, so it's easier to involve your mother, and like basically you can also talk to your aunt कि like I'm not comfortable, मैं बहुत मेहनत करके कमाता हूँ
और ये बड़ा स्टूपिड सीन होता है कि सारी चीज़ें उठा के दे देना घर वालों को. ठीक है, इफ़ यू रियली वांट टू गो गेट अ जॉब, पैसे कमाओ, लुटाती रहो, कोई मसला नहीं है, नोबडी इज आस्किंग यू. मैं अब इस पे ना वो फिर ये भी करती होंगी आपको, आई एम जस्ट रिज्यूमिंग कि ओ यूर अगेंस्ट माई फैमिली, यू डोंट लाइक माई फैमिली, या फिर ये कि आपको बुरा लगता है कि मैं उनके लिए कुछ करती हूँ. नहीं करें, आप 100 बार करें, अपने पैसों से करें. आई वर्क रियली हार्ड टू प्रोवाइड दीज थिंग्स टू यू. कुछ केस में ऐसा भी होता है कि लोग यू नो ऑल फैक्ट्री स्टिमुलेशन, यानी द सेंस ऑफ स्मेल, राइट. आप एसोसिएट करते हो, अगर आप कोई परफ्यूम सूंघे, लाइक अगर मैं स्प्रे करूँ जोवन मस्क, राइट, मुझे अपने मामू याद आते हैं, राइट, व्हेन ही यूज्ड टू यूज़ दैट, तो मैं फ़ौरन 80s 90s में चला जाता हूँ, राइट. ही डजंट यूज़ इट एनी मोर. मगर ओल फैक्ट्री स्टिमुलेशन बहुत स्ट्रांग होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वर डेटिंग अ गर्ल हु यूज टू वेयर Burberry Weekend या Gucci का whatever, so that stays with you forever. Like दुकान में कहीं पे भी सूंगा तो फ़ौरन वो याद आती है, right? So that stimulation is very very strong. बहुत से लोग ये करते हैं कि जो परफ्यूम बीवी को ला के दिया वही माँ को भी दे दिया, अब माँ से भी वही खुशबू आ रही है जो बीवी से आनी है. बहुत वियर्ड हो जाता है, बहुत ऑकवर्ड हो जाता है. तो ये ना किया करें. तो अब आपने कुछ चीज़ें उनसे एसोसिएट की हुई हैं, फिर आपको अपनी सास से वो चीज़ें दिखने को मिले या सूंघने को मिले, तो दैट्स नॉट अ नाइस थिंग. सो टॉक टू हर. शी इज़ 25, शी शुड रियलाइज. अगर वो नहीं मानती तो बोले नहीं, मैं आप पे पाबंदियाँ नहीं लगा रहा, आप 500 करोड़ दे दें अपने घर वालों को, लेकिन फिर अपनी कमाई से दें. मैं आपके लिए कमाता हूँ, आपके घर वालों के लिए नहीं कमाता. यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर नॉट. So please, whatever I am providing, don't throw it away to your family. आपने करना है, आप खुद कमाएं, काम कर लें, बेचती रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है. लेकिन जो चीज़ मैं ला रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत करके ला रहा हूँ, तो वो प्लीज़ इट शुड स्टे इन द हाउस. इट्स फॉर देम. उनको गिफ्ट करना है, ईद, शब रात, रमज़ान, whatever, मैं ओकेजन पे कर दिया करूँगा. एंड दैट्स आउट ऑफ प्योर लव, नॉट आउट ऑफ कंपल्जन, राइट. मगर ये आप ना करें, दिस इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक. अब आप उनको बोलो कि लाइक लेट्स डू अ रोल रिवर्सल. इमेजिन इफ आई वॉज अ स्टे एट होम हस्बैंड एंड यू आर वर्किंग, बस्टिंग योर एस ऑफ, सुबह बस स्टॉप पे खड़े होके या वैन में बैठ के या ट्रैफिक में फंस के, यू आर गोइंग टू वर्क एवरी डे. ऑफिस की पॉलिटिक्स झेलना, काम करना आसान थोड़ी है भाई. इट्स अ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट. लाइक एक वो तारिक अजीज शो में होता था ना, जलेबी लटक रही, हर कोई उछल उछल के खा रहा है. सो इट इज़ लाइक दैट. Life works like that. Some people can't make that jump, they get left behind. Some people who can jump, they can get the jalebi, right? इसी तरह है कैपिटलिज्म, इसी तरह है. इट्स अ म्यूजिकल चेयर, नॉट एवरीवन गेट्स टू सिट. सम पीपल गेट लेफ्ट आउट, राइट. सिस्टम डिज़ाइन ही ऐसा हुआ है. सो यू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट पेन. सो उसको ना इमेजिनेशन बोलो, सोचो कि तुम काम पे जा रही हो, एक दिन उसको सुबह ट्रैफिक में फंसाएं और शाम को वापसी में भी फंसाएं. बोलो मैं ये करता हूँ. सो इमेजिन यू आर डूइंग दिस एवरी सिंगल डे, 6 days a week, बिकॉज मोस्ट पाकिस्तानीज वर्क 6 days a week. हर जगह 5 दिन की नहीं होती वर्किंग डेज, राइट. एंड यू मेकिंग दैट मनी एंड यू ब्रिंग इट होम एंड यू बाइंग मी स्टफ, और मैं अपने भाई को दे दूँ. यू बाइंग मी इसी मियाकी का परफ्यूम दैट यू रियली लाइक टू स्मेल. वो परफ्यूम इंसान, वो ना परफ्यूम और लॉन्जरे जो आप देते हो ना अपनी बीवी को, वो आपके लिए ही होते हैं बेसिकली, उनके लिए नहीं होते. वो परफ्यूम लगाएंगी तो खुशबू से आप ही मुस्तफ़ीद होंगे. वो लॉन्जरे पहनेंगी तो आप ही देखेंगे, शफीक भाई नहीं देखेंगे, वो आप ही के लिए होती हैं. सो ये कुछ ना, ये इंटीमेट गिफ्ट्स होते हैं जो आपके पार्टनर के लिए ही होते हैं. तो वो उठा के, या उन्होंने एक शर्ट बड़े मोहब्बत से पसंद की. शी वेंट थ्रू लाइक 6-7 stores, 50 शर्टें उठा के देखी, एक पसंद की, एंड शी इज़ लाइक माई हस्बैंड वुड लुक रियली रियली नाइस वेयरिंग दिस. और अगले दिन छोटे भाई ने पहनी हुई, देवर पहन के घूम रहा ना, आ गया यूँ करके, अस्सलाम वालेकुम हैं, तो आपकी जलेगी ना आपकी. सो मेक हर रियलाइज दिस वे कि भाई अगर तुम्हारे पैसे में इस तरह उठा के अपनी माँ को मैं चांदी का वर्क पहना, पता नहीं क्या वर्क में अम्मा को मैं सजा दूँ, तुम्हारी नहीं जलेगी. सो ओकेजन्स पे सही है, बर्थडे है दे दो, ईद है दे दो, मगर ये क्या हर महीने चीज़ें उठा के देना. तो एक काम करो, हम सड़क पे बैठ जाते हैं, उनको इधर ही ले आओ, ऐसे कर लेते हैं. तो प्यार से समझाएं, खुद नहीं समझ रही, फैमिली को इन्वॉल्व करें, अपनी माँ को इन्वॉल्व करें. अगर
वो भी हेल्प नहीं हो रही तो आप फिर अपने इन लॉ से खुद बात करें। अगर यहाँ भी बात नहीं बन रही तो फिर ये तो वही बात हो गई कि आप इतने सारे पैसे यूँ मेहनत से कमा के उसको यूँ रख के उस पर आप मिट्टी का तेल डाल के आग लगा रहे हो बेसिकली। So that's a very wrong thing. Try and like counsel her. अभी तो 8 महीने हुए हैं शादी को. Discuss this. ऐसा ना हो कि फिर ये ज़िंदगी भर का चलता रहे और आप अपनी ज़िंदगी एक बार मिलती है भाई. तू क्या ससुराल पालेगा क्या सारी ज़िंदगी इससे? खल्ली वल्ली भाई. देख लो, बात करो, प्यार से समझा दो. ये तरीका कार नहीं है यार. क्या हो गया भाई? वरना जाके खुद काम करो. हाँ जी, next one. Assalamu alaikum Junaid bhai, hope you're doing well. I'm writing this email regarding some issue I'm facing these days. Please don't mention my name. Need your guidance. I'm a happily married guy living a magnificent life, alhamdulillah. I had my ups and downs in the past. I had bad circle of friends who influenced me negatively, and I limited my focus on studies and career and was going downhill. But suddenly, with time and experience, I realized and opened my eyes and became optimistic and did complete my education and got back in my career path, fortunately. I regret that I wasted my time a lot, thanks to my parents and my family who supported me and educated me, which improved my behavior and attitude towards life. Alhamdulillah, now I have a wonderful wife and I'm grateful to Allah. Furthermore, now the past is still haunting me. Some of my close friends that were so negative that I didn't know earlier. Now, obviously, I cut off from them and I don't give a shit, as I don't want negativity in my life. I get hate messages and abuse from him, and as of now, I'm ignoring him. He's already blocked. Obviously, I can smash him in response, but ignorance is bliss. However, सबर का पलड़ा भारी हो रहा है और गुस्सा आ रहा है, और वापस गाली देकर उनकी तरह नहीं बनना. He continuously abuses. How do I respond? Should I still ignore or take any action? Please suggest me a solution to me. First of all, what has happened. You cannot bring back time. अब उसके ऊपर सारी ज़िंदगी रिग्रेट करना कि मेरा वो वाला टाइम ज़ाया हो गया, that's not going to add any value. What you need to look at your wasted time as ke, thank God I had wonderful family and a wonderful social circle, a wonderful support that brought me out of that misery, or else I could have been a loser for the rest of my life. So try look at it half glass full. हो गया. इमरान खान साहब से इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन एक बात वो सही कहते हैं कि पास्ट, द ओनली थिंग यू कैन डू विद योर पास्ट इज लर्न फ्रॉम इट. दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू. पास्ट को जाके आप चेंज नहीं कर सकते. बैक टू द फ्यूचर तो चल नहीं रही कि जी गाड़ी में बैठ के गए, चीज़ें घुमा दी और सही हो गई. सो कितना रिजेंट करना है, एंड व्हाट अमाउंट ऑफ, ये मैं भी हमेशा कहता हूँ, व्हाट अमाउंट ऑफ रिजेंटमेंट, व्हाट अमाउंट ऑफ रिग्रेट, व्हाट अमाउंट ऑफ क्राइंग एंड वाइनिंग विल मेक थिंग्स ओके. तो फिर डू दैट. इफ यू से कि हाँ अगर मैं एक हफ्ता रोऊंगा तो चीज़ें सही हो जाएंगी तो रो ले, मगर ऐसा नहीं है. इट्स नेवर गोना चेंज. इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड. हो गया. Be grateful that you got out of that misery. Now coming back to the fact के वो गालियाँ दे रहे हैं तो देने दे भाई. फटा हुआ ढोल हमेशा ज़्यादा शोर करता है, जो खाली ढोल होता है ज़्यादा शोर करता है. मेरा हमेशा ये मानना है कि यू विल ऑलवेज गेट हेट इन लाइफ नो मैटर वॉट यू डू. एदी साहब से ज़्यादा नेक आदमी इस मुल्क में नहीं गुजरा. टू दिस डे ही इज़ डेड. 5-6 साल हो गए उनकी डेथ को. टू दिस डे ही गेट्स हेट कि वो ये ऐसे बच्चे पालते थे, नाजायज़ बच्चे पालते थे, या किडनी बेचते थे, या ऑर्गन्स, व्हाटएवर, राइट. तो जब उनको नहीं छोड़ा तो मैं और आप कौन सी खेत की मूली है. डू यू रियलाइज हाउ मच हेट आई गेट एंड फॉर वॉट. अब आप सोच लें मैंने ऐसा क्या किया दैट आई गेट हेट. पीपल ओनली हेट यू बिकॉज दे डोंट हैव वॉट यू हैव. उनको बस यही है कि यार ये आगे कैसे निकल गया. दे वॉन्ट एग्जैक्टली वॉट यू हैव. कुछ लोगों को फेम चाहिए, कुछ लोगों को पैसा चाहिए, तो वो उस तरह से देखते हैं कि यार इसके पास क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं है. और फिर वो उस हेट्रेड में फंसे रहते हैं और उसी दलदल में फंसे रहते हैं, एंड दे वेस्ट देयर ओन लाइफ. किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. किसी के गाली भेजने से मोमेंटरीली मुझे शायद बुरा लगे, बट देन आई मूव ऑन. आई एम लाइक फक यू, आई डोंट गिव अ शिट मैन. The amount of time I would waste arguing with you, I'd rather make a video and make hundreds of dollars. What would I do? I'll do that. Fuck you, man. I'll be more richer, right? Rather than arguing with you, और मैं अपने आप को इमोशनली ड्रेन करूँ और फाइनेंशियली ड्रेन, क्योंकि टाइम इज़ मनी ना. टाइम इज़ ऑफ द एसेंस, टाइम इज़ मनी.
तो वो टाइम या तो मैं अपने काम पे लगा के अपने आप को अपने अंदर और वैल्यू ऐड करूँ, नॉट जस्ट मॉनिटरीली बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ fulfilling my passion, fulfilling what I do, what I love, right? So it costs to fight. It costs to fight. It costs to do anything. It costs to be, right? जिंदा रहना भी एक कॉस्ट है भाई. हवा एसी तो चल रहा है ना, सब कुछ चल रहा है ना, खाना तो जा रहा है ना अंदर. सो मैं वहाँ क्यों फोकस करूँ जिससे मुझे कुछ मिलना ही नहीं है. व्हाट सेटिस्फैक्शन विल यू गेट? सो मेरा हमेशा से ये मानना है, ऑलवेज लेट योर सक्सेस डू द टॉकिंग. वो कहते हैं ना कि लाइक पीपल विल ऑलवेज टॉक शिट अबाउट यू, पीपल विल ऑलवेज मेक नॉइज अगेंस्ट यू, लेट योर लैम्बोर्गिनी मेक बिगर नॉइज. सो दैट्स द ड्रीम ब्रो. लैम्बोर्गिनी मैं करूँगा ना, जब आवाज़ ही नहीं आएगी भाई किसी चूतिए की. करते रहो, बोलते रहो. Write whatever the fuck you want to write about. I don't give a shit. You're beneath me already because that's why you're discussing me. Right? Why am I not discussing you? You get what I'm saying? Because I'm not jealous of you for anything. I'm not jealous of anyone who's achieved more than me. I'm happy for other people, which is why I am where I am. This is how I think. मुझे तो कभी नहीं हुआ कि यार मूरू के ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, मेरे कम है. मैं तो खुश होता हूँ कि हैं उसके, अच्छी बात है. एंड आई विश हिम मोर. राइट? सो ये वाला एटीट्यूड आपको फर्दर लेके जाता है लाइफ में, बिकॉज यू आर वायरिंग योर ब्रेन इन अ पॉजिटिव वे. अगर मैं यही बोल के सड़ता रहूँ यार उसके ज़्यादा हैं, या वो उसके पास ये वाला कैमरा या मेरे पास नहीं है, व्हाट्स दैट गोना डू? कुछ भी नहीं. दूसरा ऑप्शन क्या है? आई वर्क हार्ड एंड आई मेक मीन्स टू एक्वायर व्हाट आई थिंक अदर्स हैव, और मेरे काम में और वैल्यू बढ़ सकती है. राइट? मुझे ये माइक चाहिए था, मेहनत की, ले लिया. पिछला वाला माइक भी अच्छा था, इसमें ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी है. तो आपको ग्रो ही करना है ना ज़िंदगी में. राइट? तो माशाल्लाह यू आर हैप्पी, यू आर मैरिड, यू आर डूइंग एवरीथिंग इज गोइंग फॉर योरसेल्फ. लेट देम से व्हाटएवर दे वांट टू से. सर पे लो ही नहीं, उल्टा हंसो कि इनको मैं दोस्त बोलता था. दोस्त अगर वो आपके इन रियल सेंस होते ना, तो वो आपकी कामयाबी पे खुश होते, ना कि आपको गालियाँ देते. सो अगर वो आपको आज गालियाँ दे रहे हैं, दैट मीन्स दे वर नॉट योर फ्रेंड्स टू बिगिन विद. सो व्हाई टेक द पेन मैन? Fuck them. They're nobodies, and they will live like this and they will die like this. I don't wish that to anyone, but chances are more likely, most likely, this is what they are. You are, you are a product of 5 people you hang out with. So clearly they're hanging out with very negative people, which is why they have so much negativity in them. Who wakes up in the morning? Kabhi, like, you know, sometimes I wake up, आई रीड माई मैसेजेस, और सुबह 9 बजे लोगों ने गालियाँ दी हुई होती हैं मुझे, सुबह 9 बजे. सो आई लुक देम अप कि अच्छा ये इन्होंने कहाँ से, कराची से भेजा, तो वहाँ के 9 बज रहे हैं. कभी कभी तो यू नो यूएस से भी, इधर उधर से भी आ रहे होते हैं ना मैसेजेस. सो देयर वाज दिस गर्ल, शी रोट सम नास्टी थिंग्स टू मी इन माई इनबॉक्स, और लाइक रियली रियली नास्टी. अब मैंने देखा यार सुबह के 9:20 पे उसने मेरे बारे में ये लिखा है. राइट? मैं जवाब दे सकता था, और बहुत अच्छा दे सकता था, ठीक है. लेकिन मैंने ना ये सोचा, मैं उसका प्रोफाइल देखा, लिव्स इन कराची, स्टडीइंग समवेयर, व्हाटएवर. मैंने बोला यार इस बेचारी बच्ची की ज़िंदगी में, बच्ची तो खैर नहीं, चलो इस लड़की, इन खातून की ज़िंदगी में कितनी नेगेटिविटी होगी, दैट शी इज़ वेकिंग अप एंड डिसाइडिंग दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आई एम डूइंग विद माई डे. हाउ शिटी ऑफ अ पर्सन डू यू हैव टू बी to have that kind of resentment for someone you don't even know? You don't know me. You know me from the screen. You don't know me as a person, right? I can be a different person. People are different people on Instagram, but in real life they're completely different. A lot of people who meet me get disappointed. Why? Because they assume कि मैं जिस तरह मजाक मस्ती कर रहा हूँ, तो मैं रियल लाइफ में बहुत सीरियस आदमी हूँ. I'm always quiet. I'm observing people. I'm observing places. Every time I'm in a group of people, I'm the least conversing person. I'm listening more. मैं सुन रहा होता हूँ कि लोग क्या कह रहे हैं, and then I say whatever I want to say, and I don't argue with people. मैं argue नहीं करता किसी से. मैं कहता हूँ हाँ आप ठीक है. मेरी जॉब थोड़ी किसी को सही करना. It's not my job. I have the same means. They have the same smartphone that I have. मैंने तो स्मार्टफोन से दुनिया सीखी है. मैंने तो ये बोलना, लिखना, पढ़ना सब मैंने तो इंटरनेट से सीखा है. तो उनके पास भी वो इंटरनेट है जो मेरे पास था. या तो ये हो ना कि मैं डीप वेब में कुछ और सीख रहा हूँ और आप
दूसरे वेब में कुछ और सीख रहे हैं, वो तो नहीं है ना, वी आर ऑल यूजिंग द सेम इंटरनेट. सो मैं तो पढ़ के ये सीखा है. अगर वो ये सब कुछ होने के बावजूद भी ही इज़ नॉट लर्निंग, सो दैट्स हिज प्रॉब्लम, नॉट माइन. और मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ अगले पे? मैं कोई कन्वर्ट करने थोड़ी आया उन लोगों को भाई. आई एम जस्ट लिविंग माई ओन लाइफ. सो आई फेल्ट रियली सैड. मैंने बोला यार कि लाइक हर लाइफ मस्ट बी फुल ऑफ सो मच हेटरेड, नेगेटिविटी, एंड हर डैडी प्रॉब्ली नेवर हग्ड हर. ये होता है ना, डैडी इशूज़ तो हैं लोगों के. सो दैट शी इज़ वेकिंग अप. मोस्ट लाइकली कुछ लोग आप ये भी कह सकते हो कि क्या पता वो पूरी रात की जागी हुई हो. चलो, assuming she woke up, she decided that's the first thing I'm doing in the morning. फिर वो दिन कैसा गुजरा होगा जब आपकी इस दिन की शुरुआत ही नेगेटिविटी से, किसी को गालियां देने से, जिसको आप जानते भी नहीं हो. यू डोंट इवन नो दैट पर्सन, राइट? That must be a very very shitty life to live. And I feel sorry, man, but I mean, like, you're the beneficiary of your own happiness. Like, here I'm not gonna give it to you, or like you don't have to seek validation from me. It should come internally, जैसे मैंने शुरू में भी कहा. So like, I don't know, man, that's your life. That's the path you've chosen. So if they're giving you shit, that's the path they have chosen. That's what they have decided. दिन में 24 घंटे होते हैं. So if they're like, okay, this is what I'm doing today, that's a very sad life to live. There is so much in the world to see, so much to explore, so much to read, so much to learn. There is so, like, the flow of information has never been so accessible and so easy and readily available as it is today. I feel so sad. अगर आप आम बंदे किसी से पूछो ना कि tell me like 5 websites that you regularly visit except Google, Facebook, Twitter, they won't even have 5 websites that they go to, because उनकी reality ये social media ही है. Hey, इंटरनेट पे और Pornhub as well, right? इतना कुछ अवेलेबल है, एंड लाइक पीपल आर लाइक दे आर फिक्सेटेड ऑन अदर पीपल्स लाइव्स. ये क्या कर रहा है, इसने क्या पहना हुआ है, इसके पास इतना पैसा क्यों आ रहा है, या ये इतना फेमस क्यों हो रहा है. मैं व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग दैट वे, दैट्स वेरी, you're exuding a lot of negativity in the universe. And as I say, you only get what you give. गाना है ना, आप दुनिया में नेगेटिविटी दोगे, the world works on law of attraction. You give out negativity, you will get negativity. That's how it goes. आप नेचर का कोर्स नहीं चेंज कर सकते. दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. आई मीन, ये माउस है, इसकी जॉब ये है कि मैं यूं घुमा रहा हूं तो कर्सर वहाँ घूम रहा है. दिस इज इट्स नेचर. आई कांट मेक इट कुक मी फूड. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? जो इसकी नेचर है वो उसी में रहेगा. सो द वर्ल्ड वर्क्स ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन. आपने सुबह उठ के अगर ये डिसाइड करना है कि मैं इसको गाली दूंगी तो मुझे अंदर से मैं अच्छा फील करूंगी, यूर ओनली, आप अपने दिल के पूल में सिर्फ नेगेटिविटी ही भर रहे हैं. एंड वंस यू बिकम दैट, यू बिकम मोर बिटर, देन यू बिकम वर्थलेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. But that's the life you've chosen. I have no control over your life. Same goes for you. You have no control over their lives. That's the path they have chosen. So don't give them the power to ruin your day. Momentarily बुरा लगता होगा, naturally लगता है, मुझे भी बुरा लगता है momentarily, but then I think, what the fuck do they know about me? So you get what I'm saying? ज़्यादा मत सोचो ही नहीं. Delete, shift delete. Okay? So thank you so much. That was today's episode. I hope you enjoyed it. और इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी. तब तक अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और पेट्रेन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा. Thank you so much. Bye.